Good morning, students. Today we are going to revise the poem The Road Not Taken, written by Robert Frost. We have already discussed this poem. Today we are going to revise once again because for our half yearly exam point of view, this poem is very much important. So let's start the poem The Road Not Taken. Here the very title of this poem is symbolically presented by the poet. The road here symbolizes choices of life, decisions of life. Throughout this poem, the poet wants to convey to the readers the message that in our life it is very much important to take decisions, to form choices of our life, because choices are different to every individuals. Decisions and choices of life varies from person to person. So to take decisions, to choose aim of life, it is very much crucial to every individuals. So throughout this poem, the poet wants to convey the importance of taking decisions, the importance of choices of life to shape of our career. It is very much crucial for everybody. So this very much important idea has been presented by the poet throughout this poem. Now let's start the poem. This well-known poem is about making choices and the choices that shape us. So it is one of the फेमस पोएम्स रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक फेमस पोएम है ये, द रोड नॉट टेकन. और ये जो पोएम का जो मेन विषय वस्तु है वो क्या है? डिसीजन, कोई सिद्धांत, लाइफ में कोई डिसीजन लेना, एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, कोई डिसीजन लेना और उस डिसीजन के हिसाब से हम लोग को आगे बढ़ना है, हम लोग का कैरियर को बिल्ड करना है. तो इस विषय में पोएट इस पोएम में वर्णन किए हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ बिलोंग टू अमेरिका का है, इसलिए अमेरिकन पोएट, हु राइट्स सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन एंड ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ. तो उनका जो व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम्स. Robert Frost poems are written in simple words, simple phrases, simple language. He writes majority of his poems in simple language. But most importantly, his poems are insightful. Insightful in the sense his poems bears डीप इनर मीनिंग, डीप फिलोसॉफी ऑफ लाइफ. जीवन का एक जो बहुत ही गहरा फिलोसॉफी को एक्सप्रेस करता है उनका पोएम. एक जो इनर मीनिंग, एक बहुत ही गहरा इनर मीनिंग, जीवन से जुड़ा हुआ एक गहरा इनर मीनिंग उनका जो पोएम में एक्सप्रेस होता है. About common and ordinary experiences of life. His poems are based on common and ordinary experiences of life. जीवन का जो बहुत ही साधारण जो अनुभव जीवन का, उस जीवन का साधारण अनुभव के बारे में उनका पोएम बेस्ड करके रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पोएम लिखते हैं. तो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood
and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Very beautiful lines. Two roads diverged in a yellow wood. The poet is standing in the middle point of the two roads, and these two roads are leading to a yellow forest. Forest is called yellow because the leaves of the trees are getting yellow in color. The leaves of the trees got decayed, degenerated due to autumn season. It is the autumn season. यहाँ पे autumn season का विवरण है, इसीलिए autumn season पतझड़ का सीजन होता है, पत्ता शाखाओं से नीचे गिरता है, और इसीलिए येलो वुड, ये जो फॉरेस्ट है, जंगल है, ये जंगल पूरा पीला कलर का दिख रहा है, क्योंकि इस जंगल का जितना भी पेड़ है सब पीला कलर का, पेड़ का पत्ता सब पीला कलर का हो गया है ड्यू टू ऑटम सीजन के वजह से। तो टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड, दो रास्ता मिलता है, एक पीला कलर का, ये जो जंगल में जाके मिलता है दो रास्ता, और दो रास्ता के मिडिल पॉइंट में पोएट खड़ा है। डाइवर्ज मतलब टुक डायरेक्शन, दो रास्ता जो जंगल के प्रति डायरेक्शन लेता है। और एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, द पोएट फेल्ट वेरी मच सोरो दैट ही कुड नॉट ट्रेवल थ्रू बोथ द रोड्स, दोनों रास्तों में वो अपना जो सफ़र नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए पोएट को दुख हो रहा है। द पोएट इज कन्फ्यूज्ड which road to take, which road to travel through. The poet is confused. The poet could not take a proper decision. The poet is confused. The poet confused हो गए हैं कि कौन सी रास्ता में पोएट को सफ़र करना है। And sorry I could not travel both and be one traveler. पोएट एक ही ट्रेवलर है, तो एक ही ट्रेवलर एक ही समय में दो रास्ता में वो सफ़र नहीं कर सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रेवल थ्रू बोथ द रोड्स बाय वन ट्रेवलर। तो फॉर दिस रीजन द पोएट इज स्टूड इन द मिडल ऑफ द टू रोड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड द पोएट थॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम टू टेक डिसीजन, टू टेक अ प्रॉपर डिसीजन। लॉन्ग आई स्टूड, बहुत देर तक पोएट वहाँ पे खड़ा था। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। लुक डाउन वन मतलब एक रास्ता के प्रति वो बहुत समय लेके एक रास्ता के प्रति वो देखते रहा। पोएट जितना देर तक वो देख सकता है उतना देर तक उस रास्ता के प्रति पोएट देखता रहा खड़ा होके। टू वेयर इट बेंड, और कहाँ तक पोएट ने उस रास्ता को देखा, जहाँ रास्ता ख़त्म हो रहा है, जहाँ से रास्ता टर्न ले रहा है, टर्न लेके झाड़ी के बीच में घुस रहा है। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रेंजर, देन टूक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। तो देख, तो आफ्टर टेकिंग अ लॉन्ग टाइम फाइनली द पोएट टूक अ डिसीजन एंड द पोएट टूक द सेकेंड रोड। तो दूसरा जो रास्ता है, दूसरा रास्ता को चुना पोएट ने फाइनली। जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। जस्ट एज फेयर मतलब जो पहले वाला रास्ता जितना अच्छा था उतना ही अच्छा ये दूसरा वाला रास्ता ही उनको लगा, पोएट को लगा। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और पोएट को लगा कि ये दूसरा रास्ता पहले वाला रास्ता से और भी अच्छा है। बिकॉज उसके पीछे क्या रीज़न है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, क्योंकि ये जो दूसरा वाला रास्ता है, दूसरा वाला रास्ता पूरा घास से भरा हुआ है और इसका रिपेयरिंग जरूरी है। इसका मतलब इस रोड बनाया, द रोड इज नॉट रेडीमेड, द पोएट हैज़ टू मेक इट रेडी फॉर ट्रेवलिंग। Though as for that the passing there had warned them really about the same। तो पोएट को पता है कि ये जो रास्ता है, दूसरा वाला रास्ता, ये बना रेडीमेड रास्ता नहीं है। तो वो
पोएट इस रास्ता को रेडीमेड कर सकता है, चल के वहाँ पे वो रेगुलर वहाँ पे चलता रहेगा उसी रास्ता से, वो रास्ता वो सफ़र करने के लायक हो जाएगा. इट इज़ द बिलीफ ऑफ द पोएट. नेक्स्ट मूव ऑन टू द थर्ड स्टेंजा. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, how I doubted if I should ever come back. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. बोथ दैट मॉर्निंग, तो दो ही रास्ता, टू रोड्स आर सेम, बोथ द टू रोड्स आर सेम, और दोनों ही रास्ता में क्या होता है, मॉर्निंग होता है. इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, दो ही रास्ता में कोई अभी तक सफ़र नहीं किया है. इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और दो ही रास्ता में क्या, दो ही रास्ता लीव्स से भरा हुआ है. कोई आदमी दोनों रास्ता में अभी तक अपना सफ़र नहीं किया है, इसलिए कोई पैरों का स्टेप वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है. ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे. तो पोएट को थोड़ा दुख हुआ कि वो पहला वाला रास्ता नहीं चुना, तो इसीलिए पोएट ने कहा कि आई केप द फर्स्ट ऑन फॉर अनदर डे. हम दूसरा जन्म में हम जो पहले वाला जो रास्ता है उसको चुनेंगे, इसको दूसरा जन्म के लिए, दूसरा दिन के लिए हम इसको छोड़ दिए. येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, द पोएट नोज इट वेरी वेल दैट वे लीड्स टू डिफरेंट वेज, जस्ट लाइक सक्सेस लीड्स टू अनदर सक्सेस, likewise way leads to another way. Yet knowing how way leads on to way, पोएट को पता है कि एक रास्ता हम लोगों को दूसरे रास्ता तक पहुंचता देता है. I doubted if I should ever come back. The poet is a little bit doubtful if he could come back or not. पोएट को ये शक हो रहा है कि यदि हम दूसरा रास्ता में अपना सफ़र शुरू करते हैं और शुरू करने के बाद हम दूसरा रास्ता से कम बैक फिर से लौट आ सकते हैं क्या. द पोएट इज अ लिटिल बिट डाउटफुल अबाउट दिस. नेक्स्ट लास्ट स्टेंजा. आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ sigh. Somewhere edges and edges hands. Two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. It is very much important stanza. Students, be attentive. I shall be telling this with a sigh. Sigh means long breath. तो पोएट ने लॉन्ग ब्रेथ लेके बोलना शुरू किया. I shall be telling, हम बोलते रहेंगे. Somewhere edges and edges hands. Edges and edges hands मतलब times to come, फ्यूचर में बहुत दिनों तक, 100 सालों तक, बहुत दिनों तक, फ्यूचर में 100 सालों तक हम ये बात बोलते रहेंगे. The poet could not forget about this incident, about taking his proper decisions in front of two roads. The poet could not forget this incident. That's why the poet is telling that I will remember this, and after 100 years we shall be telling this. तो क्या बोलते रहेंगे पोएट. Two roads diverged in a wood. दो रास्ता एक फॉरेस्ट में, एक जंगल में मिल रहा था, बैंड हो रहा था. दो रास्ता एक फॉरेस्ट के नज़दीकी में आके बैंड हो गया है. टुक अनदर डायरेक्शन. तो दो रास्ता क्या हुआ, फॉरेस्ट के सामने नज़दीकी में आके डिवाइड हो गया है, और डिवाइड होके कहाँ मिल रहा है, एक फॉरेस्ट में. एंड आई टूक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय. और हम पोएट ने कौन सा रास्ता को चुना, जिसमें लेस ट्रेवल्ड बाय, जिसमें कोई सफ़र, बहुत कम लोग सफ़र किए
क्या होगा, उस रास्ते को पोएट ने चुना था। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। और पोएट ने क्या कहा लास्ट में कि ये जो हम दूसरा रास्ता चुना, ये दूसरा रास्ता जो चुना, ये जो दूसरा रास्ता चुना, तो ये जो डिसीजन बहुत ही अच्छा डिसीजन था मेरे लिए, क्योंकि इस रास्ता को चुनने के बाद, इस डिसीजन को लेने के बाद मेरे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। हम पोएट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है, पोएट को फेम मिला है, बहुत ज़्यादा नाम मिला है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिला है, पोएट को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला है ये जो सेकंड वाला रास्ता चुन के। तो स्टूडेंट्स, हियर इन थ्रू दिस पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट वांट्स टू कन्वे टू द रीडर्स द मैसेज दैट in our life to take proper decision is very much crucial, is very much important, and you always try to take exceptional choices of life। जीवन में थोड़ा हट के, थोड़ा अलग टाइप का चॉइस को तुम चुनो, और इस अलग टाइप का जो चॉइस को डिसीजन लोगे, चॉइस को चुनोगे, तो तुम्हारा ज़िंदगी में, तुम्हारा लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस आएगा। यू बिकम वेरी मच सक्सेसफुल देन अदर्स इफ़ यू टेक एन एक्सेप्शनल चॉइसेस इन योर लाइफ। सो टेकिंग डिसीजन, टेकिंग प्रॉपर चॉइस ऑफ लाइफ इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। और देखो यहाँ पे देखो, द पोएट इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ थ्रू आउट दिस पोएम। इस पोएम में अपने बारे में बोल रहा है कि that has made all the, I took the one less traveled by and that has made all the difference। तो पोएट अपने बारे में बोल रहे हैं कि हम ऐसा डिसीजन लिए थे लाइफ में, ऐसा चॉइस को चुने थे जो बहुत कम लोग ही चुने थे। जैसे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक पोएट बनने का सपना था उनका, तो पोएट्री लिखने का जो डिसीजन, वो ये डिसीजन लिया था कि हम एक बहुत बड़ा पोएट बनेंगे, तो पोएट्री लिखना शुरू किया। तो ये एक डिफरेंट चॉइस है, ज़्यादातर लोग का इस टाइप का चॉइस नहीं रहता है। तो ये जो डिफरेंट चॉइस चुनने के बाद क्या हुआ, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और पोएट ने ये जो पोएट बनने का जो चॉइस चुना, तो चुनने के बाद देखो क्या हुआ, पोएट बिकम ए वेरी मच सक्सेसफुल पोएट, वेरी वर्ल्ड फेमस पोएट ऑफ अमेरिका का वर्ल्ड फेमस पोएट वो बना रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट को बहुत ज़्यादा नाम मिला, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिला, एंड इवन टुडे वी रिमेंबर रॉबर्ट फ्रॉस्ट एज ए वेरी फेमस पोएट। सो दैट्स all, this is the gist, this is the theme of this poem. Hope you all understand this